we, the Scepter College, we have initiated this podcast to talk on multiple topics, and today the podcast has been initiated in order to promote mental health and seek awareness from the great and the most finest uh, psychologist from Pakistan, Ms. Kawal Kadir. How are you, ma'am? I'm fine. How are you? I'm good too. Ma'am, you're starting with the main concept of mental health and seeing that all the stigmas related to it are at the highest peak. Can you tell me that what is mental health and what should we do for the stigmas related to it? I think Azam, now तो we have gotten much better than what we were previously. I talk about it a lot during because I also teach. So मैं अपने students से बहुत ये कहती हूँ कि हम I think we came from a much worse time when it comes to mental health. I think up to now we have come to a time where people have started to acknowledge कि जितनी integral physical health होती है उतनी integral mental health भी होती है, and that they're two separate things. मतलब लेकिन अभी भी ऑफ कोर्स वेयर एवर जहाँ साइको एजुकेशन कम है, जहाँ लोगों को अंडरस्टैंडिंग कम है, वहाँ अभी भी हमें लगता है कि कोई फिजिकली बीमार है तो एक्चुअली बीमार है, मेंटली बीमार है तो मतलब वी स्टिल बिलीव कि थोड़ा रिलीजन की तरफ डाइवर्जन ज़्यादा करें. मतलब हम अभी भी कहते हैं किसी से बात कर लो, बाहर थेरेपिस्ट से बात करने की क्या जरूरत है, फ्रेंड से बात कर लो, घर पे किसी से बात कर लो. सो अभी भी हमारे आई थिंक वी अवेयरनेस अब आ गई है कि मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज हैं, लेकिन अभी तक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई है कि यू एक्सेप्ट देम कि इट्स एन इशू दैट रिक्वायर्स इंटरवेंशन. ये सिर्फ इशू आइडेंटिफाई करने से सॉल्व नहीं होता, मतलब इसको आगे ऑफ कोर्स इसकी इंटरवेंशन और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है. आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर अभी तक नहीं आई है. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो हो गई है, पीपल एक्नॉलेज कि हाँ मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ होती है. एज लॉन्ग एज यू हैव अ बिट ऑफ एजुकेशन दे विल एक्नॉलेज इट. तो वो बस द एक्सेप्टेंस नाउ इज मिसिंग. Okay, yes. And how would you define a mental healthy person? A mentally healthy person on very much baseline terms is a person who would probably function adequately. Now by functioning adequately इसका simply मतलब होता है कि अब जो भी टास्क एज ब्रैकेट के हिसाब से देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी फंक्शनिंग में होती है हमारी एज फैक्टर. ठीक है, अब लेट्स से आप एक 16 ईयर ओल्ड से क्या फंक्शनिंग एक्सपेक्ट करते हैं और वो 16 ईयर ओल्ड फंक्शन कैसे कर रहा है. ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर यू आर मेंटली हेल्दी और नॉट. द सेकेंड वे इज टू कंपेयर योर सेल्फ प्री एंड पोस्ट. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू बी फंक्शनिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल, लेकिन अब मेरी फंक्शनिंग में डिक्लाइन आ गया है बिकॉज अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ सिम्टम्स डेवलप हो तो आपकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो थोड़ी इफेक्ट हो जाती है. मतलब एकेडमिकली, फाइनेंशियली, सोशल फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी. तो अ पर्सन, आई वुड से अ पर्सन हु इज मेंटली हेल्दी इज द वन हु इज फंक्शनिंग एडिक्वेटली. मतलब जो भी काम उसने करने हैं अपनी लाइफ में एज अप्रोप्रिएटली वो सारे काम कर रहा है. दे आर एबल टू फुलफिल देयर गोल्स, दे आर एबल टू अटेन whatever things they want, at least strive for them. Attain ना भी करें तो at least they are able to strive for them. They spend their every day in a good way, मतलब mood state wise, मतलब psychologically they are healthy, they are well, they have friends, they have social circle, they have a good life. I think this is what you call a mentally healthy person. Great, ma'am. Previously, ma'am, I have attended many of your webinars and seminars. You talk about anxiety a lot, as far as I have seen. So, how would you define anxiety? What it is exactly? How a person feels in it? Can you please? देखो, basically the reason why I talk about anxiety so much now, there was also a time when I used to only talk about depression. Depression. Now the reason why majority of my stuff that you're saying is anxiety related is because it's the problem of the generation. ठीक है, मतलब जो generational कह लो, yes, anxiety issues वाकई में at your age bracket, and younger एज ग्रुप में एंजाइटी लेवल्स की डायग्नोसिस भी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, थोड़े ओल्डर लोगों में मतलब एंजाइटी जैसे यू गेट ओल्डर उनके अंदर एंजाइटी लेवल कम, डिप्रेशन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं. एंजाइटी इस वक्त ज़्यादा पीक पे होती है. तो आई जस्ट फील कि एंजाइटी अब इतना कॉमन प्रॉब्लम हो गया है कि सीरियसली अगर आप एक डायग्नोसिस की बुक लेके घूमना शुरू करें, यू विल फाइंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव एंजाइटी इश्यूज दैट क्वालिफाई फॉर अ डायग्नोसिस. देखो अब वाई सो एंजाइटी क्या होती है मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ. देयर आर 2-3 थिंग्स आई नीड टू अंडरस्टैंड. नंबर 1, सारी एंजाइटी डायग्नोसिबल नहीं होती. कुछ एंजाइटी बिल्कुल नॉर्मल भी होती है. ठीक है, एंजाइटी इज अ वेरी नॉर्मल स्टेट दैट वी ऑल गो इन. सो एंजाइटी को हम देखते हैं इट्स लाइक अ वरी अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, डिप्रेशन में कहते हैं ना वी वरी अबाउट पास्ट, के पास्ट में क्या हो रहा है. एंजाइटी इज वरिंग अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा. एंड नाउ आवर फ्यूचर हैज बिकम सो अनसर्टेन
कि जो वरीज अबाउट द फ्यूचर हैं वो एक शायद कॉमन आदमी को भी है कि यार मुझे यही नहीं पता कि कल को चीजें सही रहेंगी नहीं रहेंगी, मतलब लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टीन राइट नाउ, मतलब यू नो द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर. सो विद यू नो फिर कोविड आया बीच में, कोविड ने बहुत एंजाइटी को लोगों की एग्रीवेट किया बिकॉज हेल्थ एंजाइटी. अब इमेजिन ना इफ यू फील कि इलनेस इज गोइंग टू किल यू और उसकी वजह से पूरी दुनिया बंद हो गई. वी हैड नेवर विटनेस समथिंग लाइक दिस बिफोर. कोविड ने भी बहुत राइज दिया है एंजाइटी इश्यूज को. सो एंजाइटी इज लाइक वरी अबाउट द फ्यूचर. एंजाइटी के अंदर हाइपर विजिलेंस होती है. एंजाइटी के अंदर सिम्टम्स होते हैं जो सारे रिलेटेड होते हैं विद व्हाट यू कॉल इट हाइपर एक्टिविटी टाइप सिम्टम्स नहीं होते कि आपकी जो है वो आपको फील होगी पैल्पिटेशन इन योर बॉडी, देयर कुड बी एक्सेसिव स्वेटिंग, नॉजिया, ट्रेमर्स, आपको लगेगा कि यू नो मेरा माय हेड इज गेटिंग डिजी, मतलब मुझे सही चीज समझ नहीं आ रही. लोगों को ब्लैक आउट हो जाता है व्हेन दे आर फीलिंग एंशियस. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो एंजाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. पैनिक अटैक्स एंड पैनिक अटैक. सो पैनिक अटैक बेसिकली इज एन एंजाइटी अटैक जो आपको फुल ब्लोन एक सारी एंजाइटी के सिम्टम थोड़ी देर के लिए परसिस्ट करते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं. एंजाइटी इतना बड़ा प्रॉब्लम, आई एम अगेन टेलिंग यू, इट्स नॉट एज बिग अ प्रॉब्लम बिकॉज देखो फॉर एग्जाम्पल अज़ाम, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. इफ you have an exam, but you don't have anxiety related to it, would you ever study? No. Exactly. So anxiety is not always that bad. मतलब you know that's what I tell my students also कि anxiety तो कुछ level of anxiety अगर मेरे अंदर नहीं होगी, I would never get up to come to work every morning. Who wants to come to work? I mean, I'd rather just sleep in bed. That's you know a bit motivation. Yes, it converts into a motivation. Absolutely. तो you know तो actually when it comes to देखो एक हम term use करते हैं stress. Stress is also very similar term to anxiety. ठीक है. स्ट्रेस सिर्फ टेम्पोररी होती है, एंजाइटी थोड़ी लॉन्गर स्टेट होती है. एंड स्ट्रेस इज समथिंग दैट यू गो थ्रू फॉर अ ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम. स्ट्रेस में कहते हैं कि यू स्ट्रेस भी होती है और डिस्ट्रेस भी होती है. यू स्ट्रेस इज एक्चुअली गुड स्ट्रेस दैट मेक्स यू फंक्शन एंड डिस्ट्रेस इज द वन दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम फंक्शनिंग. तो अगर फॉर एग्जाम्पल उस स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से, एग्जाम एंजाइटी की वजह से मैंने एग्जाम के लिए पढ़ा और मैंने पेपर दिया और मेरे बहुत अच्छा ग्रेड आया, सो ग्रेट, दिस वाज एंजाइटी दैट एक्चुअली. सो एंजाइटी का कॉन्सिक्वेंस डिफाइन करता है कि एंजाइटी आपके लिए कैसी थी. लेकिन उसी एंजाइटी में मैंने पढ़ा तो सही बट पेपर देके मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई और अब मुझे जो आता भी था वो भी ना मुझे आया, ना मैंने उसमें कुछ लिखा. सो नाउ दिस इज एंजाइटी व्हिच हैज कन्वर्टेड इनटू अ बैड एंजाइटी बिकॉज इट स्टॉप्ड यू फ्रॉम फंक्शनिंग. ठीक है. सो दिस इज व्हाट बेसिकली एंजाइटी इज. मतलब हम एंजाइटी को इस तरह ही परसीव करते हैं. एंड व्हाट वुड यू से कि उसको प्रिवेंट किस तरह करें, या हम लोग क्या कहते हैं हाउ टू क्योर इट प्रॉपर्ली? Look for anxiety when it's not a disorder. ठीक है. लाइक ऐसे लोगों को कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट दे हैव. लेकिन हाँ उन्हें फील होता है कि इस एंजाइटी से मेरी लाइफ इफेक्टेड है, मेरे ग्रेड्स उस तरह के नहीं आते, मुझे पर्सनल लाइफ में इश्यूज के साथ किस तरह डील करना है मुझे अंडरस्टैंड नहीं होता, ये सारी चीजें. तो इन लेवल इश्यूज के लिए तो आई कैन टेल यू. बट यस, अगर आपको फुल ब्लोन एंजाइटी है दैट क्वालिफाइज फॉर अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. तो एंजाइटी में जिस तरह एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं. फोबिया इज आल्सो एन एंजाइटी डिसऑर्डर, अगोराफोबिया, वी हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. मतलब बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो एंजाइटी से रिलेटेड हैं. अगर आपको इनमें से कोई डिसऑर्डर है तो फिर तो यू रिक्वायर क्लिनिकल इंटरवेंशन व्हिच कैन कंप्राइज ऑफ मेडिकेशन प्लस थेरेपी. कि यू नीड अ प्रोफेशनल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है. तो ये दिस इज नथिंग दैट यू कैन ट्रीट एट होम कि खुद ही सही हो जाएगा. विद टाइम खुद ही ठीक नहीं होता. विद टाइम एंजाइटी एग्रीवेट होती है, एंजाइटी रिड्यूस नहीं होती. ठीक है. लेकिन यस, इफ यू हैव लोअर लेवल एंजाइटी व्हिच इज नॉट इनफ फॉर यू टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ अ डिसऑर्डर, तो उसके लिए ना आई विल टेल यू वेरी वेरी बेसिक थिंग्स. देखिए एंजाइटी का ट्रिगर होता है. कोई चीज एंजाइटी ट्रिगर करती है. व्हाट इज द केमिकल जो करते हैं, लाइक वी हैव डोपामिन. Anxiety I wouldn't say it's just one chemical in the body. Anxiety, honestly, trust me, anxiety is more situational than it is biological. Anxiety का situational trigger कोई होता है कि कोई चीज situation में मेरी anxiety को trigger करती है. सबसे पहले तो as a person we all need to identify कि मेरे anxiety triggers हैं क्या. You can just simply start noting down every time that you, मतलब अब तो सबके पास फोन्स होते हैं, अपने फोन पे नोट करना शुरू करेंगे कि मैं when was I feeling anxious and उससे पहले हो क्या रहा था. मतलब what triggered that feeling of anxiety कि मेरा हार्ट बीट तेज हो गई, मुझे palpitation फील होने लगी, अजीब सी तबीयत होने लगी. So what caused it? I think once you trace down or you write all of them down, you will be able to find some common factors that trigger your anxiety. ठीक है. So then it's easier to work on them. जब मुझे ट्रिगर ही ना पता हो तो मैं एंजाइटी को क्योर कैसे करूंगी. दूसरी चीज मुझे लगता है कि हम वेट करते हैं एंजाइटी को पूरा ब्लो अप करने में बिफोर वी एक्ट ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल कि स्टूडेंट को एग्जाम एंजाइटी होती है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमसे परफॉर्म नहीं होता.
ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि एंजाइटी ट्रिगर होना शुरू होती है, कुछ नहीं करते, ट्रिगर हो रही है, जब वो जाके पूरी ब्लैकआउट होने का मतलब है कि एंजाइटी अपने फुल फॉर्म में आ गई है, और वो एक सेकंड में फुल फॉर्म में नहीं आती, इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस। तो आप उस पूरे प्रोसेस कुछ भी नहीं कर रहे थे, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू ब्लो अप, और जब वो ब्लो अप हो गया आप कह रहे हैं ओ अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि फिर तो दिमाग ही चलना बंद हो जाएगा। सो मैं हमेशा कहती हूँ ट्रिगर्स को पहले से स्टॉप करें, ठीक है। एंजाइटी का वन वेरी कॉमन फैक्टर इज लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इफ यू ऑल्सो हैव अ क्लास एट 8 o'clock एंड यू लेफ्ट योर हाउस एट 7:50, एंजाइटी फील होगी ना रास्ते में। कराची का ट्रैफिक फॉर इंस्टेंस इज नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 10 मिनट में, आप और आपका डिस्टेंस ही 10 मिनट का है, तो आपने ग्रेस टाइम तो कोई छोड़ा ही नहीं है इसके अंदर, सो यू आर बाउंड टू फील एंशियस। सो आई जस्ट फील कि अगर ये एवरीडे लाइफ की छोटी छोटी टेक्निक्स है ना, हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी इन योर डेली लाइफ इज टू मैनेज टाइम। हमेशा हर जगह 5-10 मिनट पहले निकलें इन टाइम, कि आप 5-10 मिनट पहले भी पहुंच जाएं तो भले सिट इन योर कार, यू नो 5 minutes वेट इन योर कार, इट विल द मोस्ट रिलैक्सिंग टाइम। एंड वंस यू गेट ऑफ, वेदर इट्स फॉर एन एग्जाम, वेदर इट्स फॉर अ मीटिंग, वेदर इट्स फॉर एन इंटरव्यू, you actually would be in a more calm state of mind than rushing when you're feeling anxious. So number one, stop rushing about anything, so manage time accordingly. Secondly, I just feel anxiety reduce करने के लिए, because it's, I told you, it's hypervigilance. It's like your body is functioning at a higher level, so you need to relax. Relaxation is the opposite of anxiety. There are several guided imageries, relaxation tapes available on YouTube. सब लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, सब लोग 1000 वीडियोस देखते हैं, अपने लिए देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप कोई सी भी एक वीडियो देख देख के चूज कर लेंगे, चाहिए वाली वीडियो मुझे अच्छी लगती है। You have to do nothing, just play it, put on your headphones or not. You just have to listen to it, keep your phone and just close your eyes. It's those 5 minutes or 3 minutes or 10 minutes are going to be one thing that's going to recharge your brain to function in a better way. ठीक है, so that's number 2. Number 3, I just feel that everybody should have conflict resolution. Anxiety हमें ज्यादा इसलिए भी होती है कि हम बहुत सारे issues को ना बिल्डअप करते हैं और लिंगर ऑन कराते हैं, कि एक इशू है जो आज रिजॉल्वेबल है, लेकिन मैं कहती हूँ ना यार मैं कल देखूंगी, और फिर वो 2-3-4 दिन तक वो एंजाइटी आपके अंदर रहती है, यू नो, बिकॉज यू सो एंशियस अबाउट व्हाट विल हैपन। आई एम जस्ट सेइंग जितनी जल्दी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो सकता है उतनी जल्दी कर लें, इवन इफ इट्स अगेंस्ट योर ईगो, because just tell yourself you're doing it, I'm doing it for myself, I don't want to be in a state of anxiety, so I'll rather solve this problem than to keep it. ठीक है। फिर of course management, सुबह अगर any person who is anxiety prone should plan their day one night earlier for the next day, कि next day के मेरे क्या क्या टास्क हैं, मुझे सारे फुलफिल करने हैं। तो जितना आप एक सेट रूटीन में रहते हैं उतनी एंजाइटी कम होती है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी इंक्रीजेस एंजाइटी लेवल्स, ठीक है। सो व्हेन योर डे इज नॉट प्लान्ड आउट, इफ योर डे इज अनप्रेडिक्टेबल, सुबह उठ के मैं सोचूंगी व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ विल नॉट वर्क फॉर एन एंजाइटी पर्सन। सो इट्स समथिंग, इट्स लाइक यू नो यू प्री डिसाइडिंग व्हाट आई वांट टू डू एंड देन यू वर्क ऑन इट द नेक्स्ट डे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लिटरली बहुत सिंपल चीजें हैं। ईटिंग द राइट अमाउंट, ईटिंग द राइट फूड, you know, a lot of sugar is also not good for anxiety people who have anxiety, sugar से उनकी anxiety और heighten होती है, so they need to curb their sugar, कि sugar की intake कम करें, especially at night। मैं मतलब उस दिन मैं पूरी एक एग्जाम एंजाइटी के ऊपर मेरी एक वर्कशॉप थी, तो उसमें आई टोल्ड देम कि हमें क्या लगता है कि भाई एग्जाम से पहले कैफीन, यू नो, शुगरी ड्रिंक्स आप पी रहे होते हैं, इट विल गिव मी एनर्जी। मैंने कहा इट्स नॉट गिविंग यू एनर्जी, इट्स गिविंग यू एंजाइटी। nausea. Yeah, if you eat healthy, if you have a healthier meal, it's actually more likely to curb your anxiety. And then सबसे primary cheese, what is it that's beneficial for your health? Food. Exercise. Every day. Anxiety के लिए भी, anxiety का cure है exercise, because it releases the right chemicals in your body, what you were just talking about. Endorphins release करती है, मतलब dopamine release करती है, तो आपकी जो negative state है ना उससे state positive हो जाती है। Everybody will feel better after a walk, मतलब if you take them for a walk, and I'm not talking about rigorous exercise that makes you go crazy. I'm talking about normal exercise for normal people. Even praying is an exercise. Even praying is an exercise, or just getting out of your house. मतलब टैप तो मौसम बेहतर हो गया है, मतलब winters आ गए हैं, I think this is the best time to take a walk. मतलब whether it's in the morning or in the evening, just get out, just take a walk, listen to songs, listen to ayats, whatever you like, and you know you will actually feel like you're in a better state. तो I just feel anxiety को overall अपनी right में reduce जब करेंगे, so वो blow out कम होगी, you know, because it's anxiety similar to a like आप feel कर रहे हैं, अगर already everyday life में आपका anxiety level यहाँ तक है, तो फिर जब कोई trigger आएगा, let's say exam है, तो फिर तो overflow ही करेगी ना anxiety। अगर आप पहले से अपनी एंजाइटी के ट्रिगर्स को मैनेज कर लेंगे, सो मतलब यू नो एंजाइटी का लेवल डेली लाइफ में कंट्रोल रखेंगे, सो इट वुडंट ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मैम
जितना मैंने देखा है, like the anxiety I feel is not about exam. It's when I'm playing game. Okay. So like why do I feel anxiety once I'm playing game? Because I'm sure you know the answer yourself. देखो, depend on the kind of game that you're playing. For example, you are playing a game जिसके अंदर you are it's a competitive game. ठीक है, you are competing against somebody. आपने अच्छा भी वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मैच से पहले मतलब अगर पाकिस्तान हार रहा हो कि और जीत रहा हो, फॉर एग्जांपल कुछ बॉल्स रह गई हैं, इतने रन बनाने, तो हम सबको एंजाइटी नहीं हो रही होती बैठे हुए, वी नो ना जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे. सो इफ यू आर प्लेइंग दैट काइंड ऑफ अ गेम, आपकी पूरा माइंड और बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है. ठीक है, वेदर विल आई विन और नॉट, दैट्स द स्टेट ऑफ एंजाइटी. You don't know what what did I just say? Anxiety is a worry about the future. गेम खेलते हुए आपको ये नहीं पता मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मतलब यू नो, सो दैट विल जस्ट इंक्रीज योर बॉडीज हाइपर विजिलेंस टू द थिंग. सो दैट्स व्हाई गेम्स, स्पेशली कंपेटिटिव गेम्स, फाइटिंग गेम्स, ये सारे जो आर्केड टाइप गेम्स होते हैं, ये सिवाय इसके कि आप पजल बना रहे हो और आप एनीथिंग दैट इज कंपेटिटिव विल इंक्रीज द एंजाइटी ऑफ एन ऑलरेडी एंशियस पर्सन. आई वोंट से इट्स द कॉज ऑफ एंजाइटी. It could be if you play games excessively, मतलब अगर आप 24 घंटे में आप कम करें तो it has cognitive ability. अगर आप कम खेलें और अगर आपको एंजाइटी का इशू नहीं है, तो मैं तो खुद रेकमेंड करती हूँ कि प्लेइंग मेमोरी टाइप गेम्स, वो नहीं होते पजल्स, ब्लॉक डिजाइन्स, ये सारी चीजें तो एक्चुअली आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को एनहांस करती हैं. All of them are mostly having that state of anxiousness that I want to do that, but they don't know the right path. And the reason that they feel anxiety is all been resolved by you, and I believe that they will, after seeing this, they will stood up, and it was so good to have you. And have a good day. Thank you.